Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 8th class. This is your science lesson class. As I have assigned to you that you will revise chapter number 5. Chapter number 5 is about chemical reactions. We have discussed in this chapter about about the different types of chemical reactions, importance of chemical reactions, and chemical equations and their balancing with the different examples were discussed. I hope you have revised this chapter along with exercise. If you have completed revision, you will do the worksheet number 1. This worksheet contains certain questions. Question number 1, choose the correct option. MCQs are given. You will do the MCQ, read the statement carefully and mark the correct answer, like the respiration process during which glucose undergoes slow combustion by combining with the oxygen in the cells of our body to produce energy is a kind of dash. So mark the correct kind of energy. Is it exothermic, endothermic, reversible or physical? You know the better, and you will mark the correct answer. Like this you will complete the MCQ. Next question is about fill in the blanks. You will fill the blanks. First blank is in a dash reaction two or more substances combine to form a new single substance. So mark the type of reaction in which two or more simple substances मिलके एक complex substance बनाते हैं. Like this you will read and understand the statements of next blanks and fill them. Then question answers are given on the next page. So read the statement of question carefully and write the answer. What is a chemical change? Give examples. First question, you will define the chemical change and give examples. Next question is write 2 examples of decomposition reactions. You will give the 2 examples of decomposition reaction. In the next question, you have asked about to define chemical equation. So you will define the chemical equation and give example. Then you will differentiate between reactants and products. And fifth question is state law of conservation of mass. So you will define the law of conservation of mass. Now class, we will discuss exercise of unit number 6 that we have completed. You will revise this chapter and do exercise. The first question of exercise is fill in the blanks. So open the page number 95 and read the statements of blanks carefully and then fill them. First statement is acid react with bases to form water and dash. So we have discussed that acid react with bases to form salt and water. So the correct answer will be salt. Vinegar contains acetic acid. If you will read and revise the chapter, you can fill them by yourself. Tartaric acid is present in grapes and tamarind. Bases have bitter taste. बेसिस का टेस्ट बिटर होता है. अल्कलीज जो हैं, तमाम अल्कलीज बेसिस हैं, बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज, क्योंकि जो अल्कलीज हैं वो सॉल्यूशंस हैं बेसिस के इन वाटर, एंड ऑल बेसिस आर नॉट soluble in water, so all bases are not alkalis. Bases have dash touch. We have discussed in physical properties of bases that bases have soapy touch. Sodium hydroxide is also called कास्टिक एसिड. उसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुट द करेक्ट ऑप्शन फॉर करेक्ट आंसर एंड क्रॉस फॉर इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सो आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट के आगे क्रॉस लगाना है और करेक्ट स्टेटमेंट के आगे टिक का निशान लगाना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है एसिटिक एसिड इज़ फाउंड इन ग्रेप्स. तो ये करेक्ट है या नहीं है आपको पता होगा, आपने रीड किया होगा. सो एसिटिक एसिड जो है वो तो विनेगर में होता है, ग्रेप्स में नहीं होता. ग्रेप में जो है वो टार्टारिक एसिड होता है. तो इट विल बी इनकरेक्ट एंड यू विल मार्क क्रॉस. ऑल कार्बोनेट्स रिएक्ट विद मिनरल एसिड लाइब्रेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस. येस, कार्बोनेट्स जो हैं वो मिनरल एसिड्स के साथ रिएक्ट करके रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो ये करेक्ट होगा. आप टिक का निशान लगाएंगे. एसिड टर्न रेड लिटमस ब्लू. नहीं, एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं. तो ये रॉन्ग होगा, फॉल्स होगा. आप क्रॉस का निशान लगाएंगे. ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर. येस, because all bases are not alkalis, they do not form solution in water, so they are all bases. कुछ डिजॉल्व होकर alkalis बनाते हैं, कुछ नहीं भी होते. तो ये टिक है. सोल्यूशन ऑफ अ बेस है सोपी टच. हाँ जी बिल्कुल, ये सोपी टच होती है. तो यहाँ पे टिक का निशान आएगा. नेक्स्ट पेज पे MCQs हैं. MCQs रीड करें. द किंग ऑफ केमिकल्स इज़, हमें पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड इज़ द किंग ऑफ केमिकल्स. इसके बहुत लार्ज यूजेस हैं, इंडस्ट्रियल यूजेस हैं. सो H2SO4 इज़ द किंग ऑफ केमिकल्स. सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर विल
क्या करेगा, ये बेस है तो बेस रेड लिटमस को ब्लू करती है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो नहीं आएगी इसमें। पिंक कलर देती है फेनोफेथलीन को, फेनोफेथलीन कलरलेस होती है, तो ये करेक्ट आंसर है सेकंड वाला। तो नेक्स्ट भी आप रीड कर लें अगर आपको यहाँ से करेक्ट आंसर नहीं मिल रहा। थर्ड MCQ है, वन कार्बन डाइऑक्साइड इज़ पास थ्रू लाइम वाटर CaO, इसको लाइम वाटर बोलते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड इससे पास करती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है CaCO3 में, जिसकी वजह से मिल्कीनेस आ जाती है सोल्यूशन के अंदर, तो ये करेक्ट आंसर होगा CaCO3। उसके बाद लैक्टिक एसिड है इज़ फाउंड इन, लैक्टिक एसिड जो है वो मिल्क में होता है या योगर्ट में होता है। यहाँ पे ऑप्शंस दी हुई हैं, ग्रेप्स, टोमेटो, आंट स्टिंग, योगर्ट, तो योगर्ट करेक्ट आंसर है। विच इज़ नॉट द साल्ट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, तो फॉस्फोरिक एसिड बहुत सारे साल्ट्स बनाता है, उनमें Na3PO4 भी है, NaH2PO4, Na2HPO4 भी है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की बैलेंसी और फॉस्फोरिक आयन की बैलेंसी जो है वो बैलेंस करना होती है, तो ये वाला साल्ट नहीं बनता हमारे पास, ये दैट इज़ नॉट द साल्ट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। सोडियम कार्बोनेट इज़ एन इम्पॉर्टेंट साल्ट यूज्ड फॉर मैनी पर्पजेज़, आपने बताना है कि इस साल्ट के बनने के लिए कौन सा एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो उसमें ऑक्सालिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है। अगर इस रिएक्शन को हम लिख के देखें तो इसमें हमारे पास H2CO3 कार्बोनिक एसिड रिएक्ट करता है, जिससे हमारे पास जो है वो सोडियम कार्बोनेट बनता है। नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन आंसर्स रिमेनिंग हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मैंने जो है वो 5 तक आपको करवाए हुए हैं, रिमेनिंग आप करेंगे। व्हाट हैपन्स व्हेन अ साल्ट लाइक कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद वाटर, तो कॉपर सल्फेट का रिएक्शन लेके वाटर के साथ तो उसमें आपके पास बेस और एसिड बनेगा। इस सोडा वाटर एसिडिक और बेसिक, सोडा वाटर बेसिक है, सोडा वाटर NaOH का सोल्यूशन है वाटर के अंदर। विच अल्कली इज़ कॉमनली यूज टू ओपन अ ड्रेन, कौन सी अल्कली यूज़ करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन ही यूज़ करते हैं। राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन शोइंग द रिएक्शन ऑफ एन अमोनिया एंड वाटर, इसका रिएक्शन आपने लिखना है, अमोनिया और वाटर का रिएक्शन। तो इसमें हमारे पास जो है वो क्या बने, प्रोडक्ट क्या होंगे, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेंगे हमारे पास, OH, ये रिएक्शन होगा। हाउ इज़ लिटमस सोल्यूशन प्रिपेयर्ड, लिटमस सोल्यूशन बताएं किस तरह प्रिपेयर किया जाता है, उसकी प्रिपरेशन के बारे में आपने राइट करना है। एज वी हैव डिस्कस्ड दैट सर्टेन लिटमस सोल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड बाय बैलेंस बाय कंसनट्रेटिंग द सोल्यूशन। उसको इस क्वेश्चन को मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी डिटेल में। थैंक यू।